Okay, so today's topic is the programming basics. So कल सर ने जो लेक्चर लिया उसमें से सर ने मुझे ऐसा इनपुट दिया है कि बिफोर स्टार्टिंग द पाइथन एक्चुअली some basics of programming should be covered, and that is nothing but some decision control structure, and then loop control structure, how it works, and then after that we can start with the as yesterday we have taken the poll, that is pointers. So we'll taking that topic today itself, and we are completing the that C language basics in today itself, and from tomorrow we'll start the Python. Okay, so is your voice is clear? Okay. So start with the, let me switch my camera to the whiteboard. Okay, so we'll start with the decision control structure. Okay, so what is decision control? Decision control means uh, suppose there are some statements, and if you want to execute that statements depending on the condition. Okay, कई एक statement है, suppose कोई एक statement से हमें वो execute करना है, लेकिन किसके ऊपर execute करना है, कोई decision है. जैसे कि for example हमें बाहर कुछ जाना है. Okay, आज suppose मुझे बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाना है नहीं जाना है किसके ऊपर डिपेंड होगा. suppose आज बारिश होगी या नहीं होगी. So if there is a rain, then only I will go to outside, and if there is no rain, then I will go outside, and if there is rain, then I will stay at home. Okay, so depending on the weather condition, actually we are taking that we're taking the decision. So here also in a C language, actually we can control the flow of the execution depending on somewhat condition. For example, there's a printf statement hello. Okay, I want to execute the hello, or I want to execute the by. Okay, now I want to execute one of the statement only, but depending on the condition. Okay, so if the particular condition is satisfied, suppose there is a variable I, and I'm checking that if I is less than 10, if I is less than 10, then printf hello, otherwise printf by. So it means that out of these two printf statement, only one printf statement get execute. So whatever the value of I will decide which statement get execute. Okay, तो देखो printf hello एग्जीक्यूट होगा या printf by एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, i के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है. एंड वी आर टेकिंग दैट i फ्रॉम द यूजर. तो वो यूजर से लेगा या किसी प्रोग्राम मुझे देगा कि i का वैल्यू क्या होगा. तो यूजर से मैंने लगा कि printf एंटर एनी वैल्यू, और यूजर ने सपोज एंटर किया 5. अगर यूजर ने एंटर किया 5, सो i का वैल्यू हो गया 5. so if I value equal to 5, so 5 is compared with the 10, 5 less than 10. 5 less than 10 condition is true. If the condition is true, it will execute the statement inside this block. Now this block defines the how many statements this if contains. So how many statement has to be executed if the condition is true. If the condition is true, only one statement is specified, so only one statement get executed. And suppose if the condition is false, then it will not execute this statement, so this statement gets skipped, and the next statement, that is the else part, get executed. Now it doesn't mean that every time we have to put else. Okay, ऐसा कोई compulsion नहीं है कि हर बार हमें else देना ही पड़ेगा, depending on a program actually. Suppose कोई है, for example मैंने इंटरनेट एक्सेस करना है, सपोज आई वांट टू एक्सेस, मैंने google.com ऐसे मैंने वेब ब्राउजर में डाला. जैसे मैंने google.com वेब ब्राउजर में डाला, तो if the internet connection is there, it will show the Google page, otherwise it will show the page cannot displayed. Okay, so there, for example, so depending on that condition हमें बनाना पड़ेगा. तो condition क्या होगा, condition you can make with the relational operator. Okay, तो relational operator हमें पता होने चाहिए. कोई भी अगर हमें condition बनाना है, तो कंडीशन का रिजल्ट होता है ट्रू और फॉल्स. कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स. तो ऐसा कोई ऑपरेटर होना चाहिए कि जिसका वो रिजल्ट देगा ट्रू और फॉल्स. तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है, देयर आर द ऑपरेटर नोन एज अ रिलेशनल ऑपरेटर्स.
Okay, so what is the relational operator which give the relation? कोई relation देगा. Relation मतलब क्या है कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. It gives somewhat relation between the two numbers. For example, दो numbers है हो A और B. Okay, there are two variables A and B. A का वैल्यू suppose 10 है, B का वैल्यू 20 है. तो जो कुछ क्या रिलेशन होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, A और B में कुछ रिलेशन चाहिए. So what is the relational operator? Relational operator, 6 relational operators are there. First one is less than, equal to, greater than, equal to, and the not equal to. Okay, equal to and the not equal to. These are somewhat relational operators. So using these relational operators, actually we can compare these two variables. For example, if the statement is A equal to 10, okay, now this is not a relational, this is known as a assignment operator. Now what the assignment operator is doing, the many students are always confused between this double equal to and the single equal to. This double equal to is the relational operator which give the relation between the two variables. If A equal to B, represent that you are comparing A with the B. There is no modification in the value of A as well as in the value of B. But if you are doing A equal to 10, the meaning is this left hand side value, right hand side value is assigned to the left hand side. Right hand side value is the assigned to the left hand side. So whatever the is present at the right hand side get assigned to the left hand side. Got it? So there, that's why known as assignment. Assign this value 10 to A. Okay, so what is this relational operator? So using this relational operator, actually we are making the one of the condition. If the variable A and B value is given, if I want to check that A is greater or B is greater, I can first I have to make the condition. If I want to check that A is greater or B is greater, then I can do here A greater than B. Okay, so how to check it? With the relation, with the your decision control structure. If A greater than B, now the condition of the A greater than B might be true, it might be false. Now is it true, it is false, depending on the value of A and B. If the value of A is 10 and value of B is 20, now the condition becomes false. The condition becomes false. So if the condition is false, then if the condition is false, the if statement is not execute. So which statement get execute? If there is a else statement is there, then this else statement get execute. And if there is no else statement there, then no statement get execute if you have only the if statement with you. Suppose if I'm changing the condition, if A less than B. If A less than B, this condition is there, then what happened? Now value of A is 10, value of B is 20, 10 less than 20, condition is true. If the condition is true, it will go inside and whatever you have written here, it will get executed successfully. Okay, so this is depending on that particular condition, the statement get executed. So that's why it is known as it is called as a decision control structure. Depending on the decision, we are controlling the flow of the execution of our program. So just I'm writing quickly one program here. Just you need to tell me the output of this program. Integer A is equal to 10, and if A modulus 2, then printf hi, else printf by. Okay, just quickly tell me what is the output here. Okay, mostly people are saying hi. Okay, yes. Yeah, hi. So just we will check it. Yeah, both. Okay, Apeksha, the output. Aisha, the output never be both. Huh? In decision control structure, either high get execute, either by get execute. You don't have the output as a both.
Okay, so we will quickly first execute this program and we will see what is the output. Okay, a modulus 10. Tell me what is modulus operator? Modulus operator. Modulus operator is known as a your reminder operator. It will give the reminder. It will give reminder. For example, 5 modulus 2. What is the result? 5 modulus 2. The 5 modulus 2 result is 1. If 6 modulus 2, what is the result? The result is 0. So it means that what happened here, 5 is divided by 2. 5 is divided by 2. Now here you will get a reminder as a 1. You will get reminder as a 1. And 6 get divided by 2. And you will get a reminder as 0. So it means that if you want to get the reminder, actually you are using the modulus operator. What is modulus operator? If you are getting modulus operator, then you just type got it. Okay, now we will check here a modulus 2. What is the value of a? 10. Modulus 2. What is a modulus 2? That is 10 modulus 2. So we will try to find out here 10 modulus 2. So it is 5. Question is 5 and the remainder is 0. Remainder is 0. It means that the result of this expression is 0. The result of this expression is 0. But here the if requires the true or the false. If required true or false. But there is no such a thing true or false in C language. This thing exists in a Java as well as in a Python. Okay, in a C and C++ there is no such thing as a true and false. So what is true and false in C language? In a C language, true represent any non-zero value, and the false represent the zero value. False represent the zero value. So it means that if your expression is giving the output as a 0, it is treated as a false. If your result is giving the value as any non-zero value, it is treated as true. अब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, a मॉडुलस 2. अगर a मॉडुलस 2 है, इसका इट इज अ एक्सप्रेशन, इसको कोई कंपैरिजन मैंने नहीं दिया है. देयर इज नो कंपैरिजन आई एम पुटिंग हियर. मैंने सिर्फ क्या दिया था, a मॉडुलस 2. a मॉडुलस 2 दिया, इट इज एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वही आपका कंडीशन का रिजल्ट होगा. तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, 0. एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 है, तो 0 क्या होता है, व्हाट इज 0? 0 is false. If the 0 is false, then this statement you can say that this is the false. This is the false condition. If this is the false condition, this high is not execute and your program go to the else part and you will get output as a by. You will get execute. You will get a output as a by. So got it? Any problem here? Have you get it? If it is useful to you, then just type super useful. Okay, it is actually beauty of C language. That's why for C aptitude, for the aptitude for selection in your any MNC, generally the aptitudes are technical aptitudes are taking from C. Okay, so most of those peoples are actually doing the C language very basics, then they don't know the answer. Okay, बट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ट्रू मतलब क्या होता है, फॉल्स मतलब क्या है. ट्रू मतलब नॉन जीरो वैल्यू, फॉल्स मतलब जीरो वैल्यू. ओके, तो अगर सपोज मैंने ये मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने इस तरीके से कर लिया, तो आउटपुट क्या होगा, इफ a modulus 2 equal to 0, then what is the output? Just tell me. Anyone having the output by? Okay, so here what happened here, now the condition, this expression, the expression give the result as 0 and we are comparing with 0. 0 compare with 0, condition is true, so it is true. If it is true, the high get executes. Got it? So before answering any question, actually think twice. You have to execute your program yourself. Okay, before compiler, you have to execute your program and then go for the compiler. Okay, so this is somewhat very basics of the decision control structure. Now
Can you tell me, suppose if I value or a value, suppose a value integer a is equal to 10, integer a is equal to 10, and there is a variable b, there is a variable b, and suppose b is equal to a plus plus, b is equal to a plus. Can you tell me what is the value of a and what is the value of b after execution of this statement? Just type a equal to and b equal to. Okay, some different answers. Okay, so we'll see the answers. Yeah, a equal to 11, b equal to 11. Okay, so what is plus plus operator? Plus plus operator is the increment operator. It increment the value of your variable by 1. So it is a unary operator. So that's why this is one expression and this is the second expression. So in your whole expression there are the two expressions are there. So which expression is execute first? Okay, if there is a two expression in your expression, then which expression execute first? Depending on the, or it will decided by the associativity. The associativity of your equal to operator says that the right hand side has to be evaluated first. So it is evaluate a plus plus. Okay, but what is a plus plus? So plus plus operator you can use as a plus plus or plus plus a. If you are using a plus plus, it is known as a post increment. If you are using plus plus a, it is known as a pre increment. What is the actually मीनिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट हियर? ओके, यहाँ पे प्री और पोस्ट मतलब क्या होता है? नाम के लिए दिया है, ये तो एक से तो इंक्रीमेंट करेगा ही, लेकिन एक से इंक्रीमेंट कब करेगा? अभी ये इसमें दिया है कब करेगा? पोस्ट। पोस्ट मतलब क्या होता है? व्हाट इज पोस्ट? पोस्ट मीन्स आफ्टर, प्री मीन्स before. So it means that, now what is the type of the operator here? Post operator. Post means after. It means that after executing or after evaluating this expression, a is get incremented. मतलब क्या है? A plus plus will not execute first, it will execute after evaluating this expression. Okay, so it means that it will, a plus plus will execute after. So this b equal to a, this is evaluated first. Value of a is 10, so a is assigned to b and the value of b becomes 10. But after evaluating this expression, a plus plus now executes because it is after evaluating. Now a is 10 and a plus plus executes and a becomes 11. Now a is 11 and b is 10. A is 11 and b is 10. So you have to check your answers. Pre means पहले increment या decrement होता है. Okay, so I will explain it. Pre means before executing the expression and post means after executing the expression. You can check it out here. But here if I'm doing plus plus a, then what happened here? What is the value of a and what is the value of b? So here plus plus a means before executing the whole expression you have to increment the value of a. Now you are incrementing the value of a. First a is 10, so it becomes 11. A is 10, a becomes 11. Now what is b? B is, what is the content of the a? It is get assigned to b. So now what is the content of a? 11. So b is also equal to 11. Okay, b is also equal to 11, a is also equal to 11. So what this is the actually meaning of the pre increment and the post increment. Same for the decrement operator also. So decrement operator, minus minus operator, if you are doing minus minus a and a minus minus, minus minus a is known as a pre-decrement, it is known as a post-decrement. So similarly, we are taking the same example, a minus minus
E minus minus, B equal to A minus minus. Just tell me what is the output. B equal to A minus minus. So what is the type of this expression? Post decrement. Post decrement means value of A get assigned to B first. So B becomes 10, and after executing, A becomes 9. So A is equal to 9 and B is equal to 10. Got it? And if I am giving this type of expression, then B equal to minus minus A, then what happened? It is a pre type of the expression. Pre means A get decrement first, so A becomes 9, and that decremented value get assigned to B, so B becomes 9. Got it? So this is the type of the increment and the decrement. Got it? Okay. So one more point I want to discuss regarding to basics again. There is one, before starting the pointer, actually this point has to be discussed. There is known as a swapping of two variables. Okay, swapping of two variables. Swapping of two, suppose if there is a two variable A and B, if A value is 10 and B value is 20, and now I need to swap these two values. So it means that I need to write some code. After executing this code, the value of A becomes 20 and the value of B becomes 10. So do you know that code? Yeah, the Kushwant Y code said, does we need third variable? Yeah, you can use a third variable also. Okay, so it is very similar. Like now I will tell you the actually that logic. I need a third variable. Okay, so I can explain this with the help of one real life example. For example, okay, there is no third variable. For example, so there are two vessels. Okay, यहाँ पे दो vessels है. First vessel contains milk. Second vessel contains water. Okay, full, एकदम full है. Okay, this is the milk and this is the water. This is the vessel number 1. This is the vessel number 2. Now I want to do such a thing that after executing some operation, this vessel number 1 should contains water and vessel number 2 should contains the milk. तो कैसे होगा? अगर आपको मैंने बोला कि ये करना है, आपको दो मैंने ऐसे वेसल दिए और आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, तो हाउ यू आर रिप्लेसिंग? सो फॉर दैट पर्पस यू कैनॉट डायरेक्टली do that stuff, because if you pour this water into milk, it is get mixed up. Okay, so what you need, you require the third variable. What you are doing, so आप क्या करोगे? सबसे पहले एकदम सिंपल है. यहाँ पे सपोज मैंने A1 2 3 की जगह मैंने नाम दे दिया A B और यहाँ पे C और सिंपली T. now A is, सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क वाला वेसल ये खाली करना है. तो खाली कहाँ पे करोगे? आप ये टी में डालोगे. तो आप क्या करोगे? ये मिल्क यहाँ से हटा दोगे, पूरा एम्प्टी हो गया और यहाँ पे आपने डाल दिया मिल्क. तो टी में अभी मिल्क है. तो ये एक्सप्रेशन आप सी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? टी इज इक्वल टू ए. इसका मतलब ए का कंटेंट किस में गया? टी में. तो बैकअप लिया आपने, ए का कंटेंट गया टी में. तो सबसे पहले हो गया. ओके, उसके बाद में अभी क्या करोगे? आपको क्या करना है? ये जो बी वाला जो वाटर है ना, वो ए में डालना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये वाटर यहाँ पे हटा दोगे एंड यू आर पुटिंग वाटर हियर. ओके, तो बी आपका खाली हो गया. तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? बी इज ए इज इक्वल टू बी. ओके, ए में आप बी का जो भी वैल्यू था वो आपने ए में डाल दिया. ओके, तो हो गया आपका बी में आप डाल सकते हो. अभी बी खाली है अभी. ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अब ये जो मिल्क है ना, जो टी में है, वो आपको डालना पड़ेगा बी में. तो आपने यहाँ पे मिल्क डाल दिया और यहाँ का हट गया, ये भी खाली हो गया. तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? बी इज इक्वल टू टी. तो सिंपल है एकदम. यूजिंग दिस थ्री स्टेटमेंट्स एक्चुअली वी कैन डू टी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टी.
अगर मैं ऐसे करता हूँ, so after executing this statement, three statement, your A is having water and B is having milk, or you can say that A is having 20 and B is having 10. So this is the actual technique to swap two numbers using the third variable, using the third variable. कि अगर मुझे थर्ड वेरिएबल यूज करके अगर करना है, तो there is one question, Vaishnavi Kulkarni, can we do it without third variable? Yeah, you can do it. There are several ways. सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट वे इज a is equal to a plus b is equal to a minus b, and a is equal to a minus b. Okay, take any two examples of this a and b, any two examples, suppose 24 and 34, कोई भी दो भी एग्जांपल ले सकते हो. तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं. सो a का वैल्यू, दिस द वैल्यू ऑफ a, दिस द वैल्यू ऑफ b. सबसे पहले 24, उसके बाद में 34. अभी क्या है, a इक्वल टू a प्लस बी है, a इक्वल टू a प्लस बी. तो क्या करेंगे, a प्लस बी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. तो क्या होगा, 24 प्लस 34 कितना हो गया आपका 58. लेकिन 58 कहाँ पे स्टोर होगा, यू आर स्टोरिंग द 58 इन a. तो ये 24 हट जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 58. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका b इक्वल टू a माइनस बी. तो हो गया 58 माइनस 34. 58 माइनस 34 कितना होता है, इट इज 4 एंड इट इज 2, 24. ओके, तो ये हो गया 24. और ये किस में स्टोर किया, मैंने b में स्टोर किया. तो ये हो गया आपका 24. अभी a का वैल्यू है 58 और b का वैल्यू है 24. उसके बाद मैंने किया a इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a माइनस बी. सो 58 माइनस 24, 58 minus 24 is 34, and that I am storing into the a itself. So it is 34. So before executing this expression, before executing these three statements, actually a था 24, b था 34. अभी देखो मैंने तीन ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या हो गया 34 और ये हो गया आपका 24. ओके, सो हाउ इट इज यूजफुल टू यू. ओके, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है ना, जस्ट टाइप सुपर यूजफुल. This is one of the technique, and this technique can be asked in your interview. Okay, so just you have to remember it. Okay, does you किसी को और एक टेक्निक चाहिए using third variable, without using third variable? So वो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 10. ओके, तो I can swap the two variable without using third variable by technique. A is equal to a and b, b is equal to a and b, c is equal to not a and b, it is a XOR b, it is a XOR b. तो किसी को पता है XOR ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवीजन से होता है, बट इट फेल्स व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑपरेशन. फ्रैक्शन में आता है ना, तो इट गेट फेल्ड. हमीद, ओके, तो ये क्या है XOR ऑपरेटर? इट इज अ बीट वाइज ऑपरेटर. XOR ऑपरेटर होता है बीट वाइज. देयर आर 3 बीट वाइज, 4 बीट वाइज ऑपरेटर. फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर, देन OR operator, then XOR operator and the negation operator. Okay, तो ये 4 ऑपरेटर है, उसमें से मैंने XOR ऑपरेटर यूज किया. XOR का ट्रुथ टेबल आपको पता ही होगा, आपको फर्स्ट ईयर में होगा ही. आपको A XOR B, you know truth table 0 0 0 1 1 0 1 1. If it is 0 0, then A XOR B becomes 0. 1 0 1, XOR B 1, 1 0 1, and it is 0. Okay, so it means that if there are the same inputs, you will get output as 0. If there is a different inputs, then you will get output as 1. इस तरीके से याद रखना है. डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा, सेम है तो आउटपुट 0 आएगा. सेम देखो 0 0 भी है तो 0 आएगा, 1 1 भी है तो 0 आएगा. तो सेम के लिए 0, डिफरेंट के लिए 1. तो इस तरीके से याद रखना है हमें. तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है?
बिटवाइज ऑपरेटर इट विल वर्क्स इन टर्म्स ऑफ द बिटवाइज। ओके, तो बिटवाइज मतलब क्या है, ये जो 5 और 10 है ना, ये डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे बीट्स में। बीट्स में तो बीट्स में कैसे, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू 5 है, तो 5 का बाइनरी क्या होगा, व्हाट इज द बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट 1 2 4 8। तो बाइनरी क्या होगा, 5 मतलब 1 1 और ये होगा 0, तो ये हो गया 5। ओके, 0 1 0 1। बी का बोलो, बी का होगा 10, 10 मतलब 10, 8 प्लस 2 1 और 1 बाकी के 0। सो दिस इज माय ए एंड बी इन बाइनरी फॉर्मेट। तो इसको XOR करना है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो XOR बोलो क्या होगा, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ओके, तो ये किस में स्टोर करना है, ये में। तो ए में हो गया 1 1 1 1। तो ए कंटेन्स 1 1 1 1 1 1 1 1 इज 15 एक्चुअली, बट यहाँ पे जोड़ दो, हमें डेसिमल में नहीं देना है, बाइनरी में रखना है। तो ए हो गया 1 1 1 1। अभी ये तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट में क्या करना है, फिर से ए XOR बी करना है। अभी ए का वैल्यू तो मुझे पता है, बी का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ अभी। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू होगा 1 0 1 0। ये हो गया बी का वैल्यू, ये तो एज इट इज है। ए का वैल्यू सिर्फ चेंज हुआ था, बी का वैल्यू तो वही था। तो बोलो फिर से XOR करना है यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो बोलो 1 0 का क्या हो गया 1, 1 1 का हो गया 0, 1 0 का हो गया 1, 1 1 का क्या हो गया 0। लेकिन ये किस में स्टोर किया मैंने, आई एम स्टोरिंग इनसाइड द बी। तो ये बी में स्टोर हो गया, तो बी में क्या हो गया, बी में वैल्यू हो गया आपका 5। ओके, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए XOR बी। फिर से बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो वही है, ए का वैल्यू 1 1 1 1 ही है। ए का वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, ए का वैल्यू अभी 1 1 1 1 था, वही हम ले रहे हैं यहाँ पे। बी का वैल्यू अभी 5 हुआ था। फिर से XOR करो, ए XOR बी। ए XOR बी एंड बी XOR ए वन ऑफ द सेम थिंग। सो इट इज हो गया आपका, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। और ये किस में स्टोर कर रहे हो, सी में नहीं, ए में स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ए, तो ये मुझे ए में स्टोर कर दिया मैंने। तो ए में स्टोर कर दिया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 10। तो हो गया आपका ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 10। और बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू 5। साफ हो गया, पहले था ए का वैल्यू 5 था, बी का वैल्यू 10 था। अभी हो गया ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 5 था। ओके, सो इट इज गेट स्वैप। सो इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक टू स्वैप द टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें कोई याद रखने वाली कोई चीज है ही नहीं। ए XOR बी, ए XOR बी, ए XOR बी, और यहाँ पे लिखना है ए बी ए। सिंपल, a equal to a XOR b, b equal to a XOR b, a equal to XOR b, and you will done. Got it? So is it crystal clear? Just type crystal clear. If you are getting this, if it is very useful to you, just type crystal clear. Okay, 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 okay. Now there are some several, again, these are not only the two techniques. There are different techniques are available. These are the homeworks now. This is the homework for you. Okay, what is homework? Find out the different techniques to swap two variables without using third variable. Okay, so you have to swap the two variable without using third variable. Okay, तो ये different टेक्निक्स है, कम से कम 10 से 15 टेक्निक्स है। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन that technique should be applicable to any type of input. कोई भी इनपुट अगर देना तो उसको वो एप्लीकेबल होना ही चाहिए। ओके, okay, now the next one, the next is the, actually before starting the loop control structure,
in decision control structure there is one more point, that is a switch control. Okay, so switch, suppose I'm writing here one expression, one program, switch S, case 1, case 2, case 3, and the default. Printf1, printf2, printf3, and printf default. Printf default. Okay, and this is my switch case. If my value of S is 2, if my value of S is 2, if my value of S is 2, what is the output of this program? Just tell me. Okay, okay. To some, most of the people are saying 2. Then now the trend becomes 2, 3, and default. Okay. So why 2, 3, and default? Because there is no break statement. Because there is no break statement. Yes, yes. Yeah. The if S value is 2, actually what the switch statement is doing, first I will explain you. सबसे पहले क्या होता है, ये जो s होता है ना, दिस वेरिएबल इज नोन एज अ टेस्ट वेरिएबल. ये होता है उसका टेस्ट वेरिएबल. ओके, इसको हम बोलते हैं टेस्ट वेरिएबल. टेस्ट वेरिएबल, टेस्ट मतलब क्या है, इसका टेस्टिंग करना है हमें कि इसमें क्या वैल्यू है. ओके, ये टेस्टिंग का है वेरिएबल. इसमें जो भी वैल्यू है वो हर वैल्यू कंपेयर किया जाएगा हर एक केस से. तो सबसे पहले s इज कंपेयर विद द केस 1. ओके, 1 मतलब ये वैल्यू होगा 1 से कंपेयर होगा. द वैल्यू ऑफ s इज कंपेयर विथ 1. अभी s का वैल्यू है 2 और आप कंपेयर कर रहे हो 1 में, तो क्या होगा, इट बिकम्स फॉल्स. अगर ये फॉल्स है तो इट विल कंपेयर द सेकंड केस. सेकंड केस होगा तो ये s का वैल्यू है 2, यू आर कंपेयरिंग विथ ट्रू, इट बिकम्स ट्रू. अभी ये होगा ट्रू, तो जैसे ट्रू हो गया तो स्विच क्या करता है, जैसे ट्रू हो गया द फर्दर केसेस इज नॉट इवेल्युएट. दिस इज, यू कैन से दैट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द स्विच केस. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एडवांटेज किस केस में है, अगर कोई प्रोग्राम में हमें 4-5 केस का एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो आई कैन डू दिस यूजिंग दिस एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि अगर केस 2 मैच हो गया, अगर आप, तो क्या हो गया, द एवरी बिलो केस आर ऑलरेडी, इट इज नॉट चेक, और हर स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड. पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता ही है. मतलब क्या है, केस 2 ट्रू हो गया, 3 भी ट्रू है, डिफॉल्ट भी ट्रू है. इस तरीके से आप बोल सकते हो. तो once one statement, one case is satisfied, the remaining cases is already been satisfied. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे printf 2 एग्जीक्यूट होगा, printf 3 भी होगा, डिफॉल्ट भी हो गया, आपका ब्रैकेट खत्म, मतलब आउटपुट आएगा 2, 3 एंड डिफॉल्ट. ओके, तो ये हमें नहीं करना है, आउटपुट तो ऐसा नहीं चाहिए. 2 अगर देना है तो 2 ही आउटपुट चाहिए, 3 अगर देता हूँ तो 3 चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 1 आउटपुट देता हूँ तो आउटपुट आएगा 1, 2, 3 एंड डिफॉल्ट. अगर मैं आउटपुट देता हूँ 3 तो आउटपुट आएगा 3 एंड डिफॉल्ट. तो मुझे तो ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए. सो हाउ टू करेक्ट इट, इसको करेक्ट करना है, कैसे करना पड़ेगा, तो करेक्ट ऐसे करना पड़ेगा कि अगर मुझे आप केस 1 एग्जीक्यूट होता है तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द 1 you have to break from this loop. ओके, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली बाहर जाना है, बाहर जाना है. जैसे ही ब्रेक, ब्रेक क्या करता है, इट ब्रेक द फ्लो, इट ब्रेक द फ्लो. यहाँ पे भी नीचे वाला फ्लो नहीं एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से डायरेक्टली बाहर चला जाएगा. जैसे अगर 2 सेटिस्फाई होता है तो अगेन यू आर पुटिंग ब्रेक हियर, तो क्या होगा, यहाँ से ही बाहर चला जाएगा. अगर यहाँ पे ब्रेक में देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से ही बाहर चला जाएगा. सो इट मीन्स दैट इन अ स्विच केस स्टेटमेंट, एक्चुअली इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट फॉर एवरी केस, इट इज सेपरेट स्टेटमेंट, देन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, दीज आर वन मिथ. अगेन क्या होता है कि
हर एक लोगों को ऐसे लगता है, काफी लोगों को लगता है कि ब्रेक देना कंपलसरी होता है। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होता है। अगर आप नहीं भी देते हो, देयर इज आउटपुट। ओके, अगर आप ब्रेक देते हो तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? इफ देयर इज अ ब्रेक, देन it will break from that point and it will go outside it, the remaining statement is not executed। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता तो हमें दिस ब्लॉक ब्रेक डिफाइंस द ब्लॉक। ओके, अभी इसका एडवांटेज क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। what is the advantage of this not writing break? तो suppose switch ch case a case e case I case e I o, it is colon, and case u। okay, so if one of the case is satisfied, it will print well and break and default consonant। okay, so now in this program here, if the ch value, if the what is the ch value will decide which statement get executed. If the ch value is a, small a, then what happened? Now if the first case get checked, a, now this is satisfied. If this case is satisfied, the remaining case is satisfied until you will get a break. So you will get output as a Hovel, and after Hovel you will having the statement as a break, it will go directly outside. If the case is b, if ch is b, then what happened? This is not satisfied, this is not satisfied, this is also not satisfied, this is also not satisfied, also not satisfied. So default case is satisfied and you will get output as consonant। okay, so this is the useful case when we are using the common statement for the different cases। got it? अगर कुछ 4-5 के लिए हमें सेम ही आउटपुट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट इट टुगेदर। अगर इसमें से 5 में से कोई भी अगर आता है सी एच में वैल्यू, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? होल। अगर 5 के अलावा आता है तो आउटपुट आ जाएगा कंसोनेंट। सो अंडरस्टूड? इफ यू अंडरस्टूड दिस, देन जस्ट टाइप 100%, just type 100%। okay, the next one is the loop control structure। loop control structure। okay, so first I'm writing here one statement, a greater than b। okay, if a less than or equal to 10 and printf high, and there is one loop structure, if a less than or equal to 10 and printf high, printf high। now this is the first and this is the second. In first code, tell me how many times the high get execute. just type how many times in first case, how many times high get executes. okay, okay, in second case, how many times the high get executes? Second time, just now tell me how many in second time, second case, how many times the high get executes, or high you will get output as high? 10 times। yeah, correct। why? what is the difference between these two? आपका कोड अगर आप देखें ना तो सब कुछ एकदम एग्जैक्ट सेम ही है। डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है। ये हो गया फर्स्ट वाला इफ, ये हो गया व्हाइल। इफ क्या करता है? इट इज द डिसीजन कंट्रोल, इट इज अ डिसीजन कंट्रोल। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ये एग्जीक्यूट करेगा।
ओके, और कितने बार चेक करेगा? ओनली वन टाइम। व्हाइल क्या करता है? व्हाइल करता है it will execute this statement until this condition is true. until मतलब क्या? ये कंटिन्यूअसली रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर से चेक करेगा, अगर ट्रू है फिर से अंदर आएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से चेक करेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली दिस विल एग्जीक्यूट्स, कंटिन्यूअसली इट विल गेट एग्जीक्यूट्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लूप कंट्रोल। इट क्रिएट लूप, ये लूप बना देता है हमें, इट क्रिएट लूप। ऐसे कंटिन्यू गोल 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 घूमता ही रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक ये आपका कंडीशन जो है, कंडीशन जो दिए है ना, दैट कंडीशन इज, जब तक आपका ट्रू है तब तक ये अंदर घूमता ही रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वैसे इट विल गो आउटसाइड दिस लूप। सो इट मीन दैट अभी ये इंक्रीमेंट होते होते, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते ऐसा कंडीशन आएगा 11 लेस देन आर इक्वल टू 10। जैसे ए का वैल्यू 11 हो जाएगा, 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, द लूप बिकम फॉल्स। जैसे लूप फॉल्स हो जाएगा इट विल गो आउटसाइड। सो ओनली 10 टाइम्स the high get execute here. So got it, the difference between the decision control and loop control. अभी ये सबसे मतलब ये मैंने क्यों सबसे पहले क्लियर किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड आल्सो एंड दे डोंट नो दिस डिसीजन कंट्रोल एंड लूप कंट्रोल। उनको होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इस तरीके से समझाया नहीं जाता है। उनको बोलता है कि इस प्रोग्राम में इफ यूज करना है, इस प्रोग्राम में व्हाइल करना है, लेकिन अगर हमें पता है कि ये किस लिए यूज होता है, सो आई वी कैन इजीली डिसाइड दैट इन माय प्रोग्राम व्हाट इज रिक्वायर्ड। सपोज मैंने ऐसे बोला कि आपको है ना 1 to 10 आउटपुट चाहिए, 1 to 10, योर आउटपुट इज 1 to 10। तो 1 to 10 आउटपुट मतलब क्या होगा? सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। तो ये आउटपुट चाहिए आपको, हर लाइन के ऊपर एक होगा। तो आप क्या यूज करोगे? यू कैन यूज द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो लूप कौन सा यूज करोगे? तो यू कैन यूज एनी लूप। फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम यही प्रोग्राम करेंगे व्हाइल लूप से। तो व्हाइल लूप इज अ वेरी सिंपलेस्ट लूप। तो सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, ए का वैल्यू लिया मैंने 10, ओके नॉट 10, स्टार्ट विद द 1। सो ए का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मैंने 1 लिया, सो ए वैल्यू इज इक्वल टू 1। अभी उसके बाद में आपको 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैंने ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू 1 हो गया, आपका 1 आउटपुट आ गया। उसके बाद में आपको 2 आउटपुट चाहिए, तो 2 आउटपुट के लिए आपको ए का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर से आपको क्या करना होगा, सेम स्टेटमेंट यू हैव टू रिपीट हियर, अगेन सेम स्टेटमेंट यू हैव टू रिपीट, बट हाउ मेनी टाइम यू हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट? 10 टाइम्स। तो 10 बार एक रिपीट करना है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज अ लूप। आप इस तरीके से कर सकते हो, जब तक ये स्टेटमेंट है ना, ये जो 2 स्टेटमेंट है रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? कब तक रिपीट करना है? जब तक ए का वैल्यू 10 से लेस, 10 इक्वल टू और 10 से लेस है, तब तक ही ये रिपीट करना है। जैसे ही ए का वैल्यू 10 से ऊपर चला जाएगा, हमें है लूप ब्रेक करना है। ओके, तो जैसे सबसे पहले ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया, ओके ए प्लस प्लस हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, तो कंडीशन होगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गया फिर से, तो 2 प्रिंट होगा, ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू 3 हो गया, ऐसे कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। ए का वैल्यू 10 हो गया, ए का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 11, जैसे ही 11 हो गया तो क्या हो जाएगा, 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स, और ये बाहर आ जाएगा एंड योर प्रोग्राम एंडेड एंड योर आउटपुट इज 1 to 10। सो गॉट इट। तो ये हो गया स्लैश एन, या स्लैश एन दिया मैंने यहाँ पे, स्लैश एन इज देयर। ओके, सो हियर this is the program where I can get the output using the while loop। वही प्रोग्राम हमें करना है फॉर लूप से। तो फॉर लूप से प्रोग्राम करने के लिए क्या करना होगा, तो फॉर लूप प्रोग्राम करने के लिए एकदम सिंपल है। फॉर लूप में इनिशियलाइज, वी कैन आल्सो इनिशियलाइज। फॉर लूप एकदम सिंपल होता है। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन हो गया ए इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब आपका जो काउंटर वैल्यू है मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, काउंटर का लास्ट वैल्यू कितना होगा, तो काउंटर का लास्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 तक जाना चाहिए। कंडीशन हो गया आपका ए लेस देन और इक्वल टू 10, सेमीकोलन दे दिया। हर लूप के बाद में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू क्या होता है, तो ए का वैल्यू आपको 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए, 3 से 4 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू आपको हर बार इंक्रीमेंट करना है, तो ए प्लस प्लस हो गया।
ओके तो ये हो गया आपका, ये दिस इज वन टाइम एग्जीक्यूट। ओके ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक करने के बाद अंदर आएगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ओके सो इफ ट्रू इट विल गो इनसाइड। जैसे ही अंदर आया तो क्या होगा, printf %d/n, और ये इस तरीके से हो जाएगा। तो a का वैल्यू प्रिंट हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया प्रिंट, उसके बाद में a++ होगा। अभी इसके बाद में ये आ जाएगा a++ में। अभी a++ होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक आएगा। जैसे कंडीशन हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर से if ट्रू अंदर आएगा, a प्रिंट होगा, फिर से बाहर आएगा। ऐसे कंटिन्यू लूप में आ गया, अभी कंटिन्यूसली लूप में आ गया। इंक्रीमेंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक। जैसे ही वैल्यू 11 हो गया तो है 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। और जैसे फॉल्स हो गया तो ये बाहर चला जाएगा यहाँ पे, एंड योर प्रोग्राम गेट एंडेड। गॉट इट? सो गॉट इट? फॉर लूप तो सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में हो गया कंडीशन, उसके बाद में हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। गॉट इट? Okay, so can I write suppose I want to write a program, which will give the output as a table of 5. टेबल ऑफ 5 आउटपुट चाहिए, तो कैसे आएगा, फॉर लूप कैसे आएगा? फॉर सपोज मैंने इस टाइम में आई लिया है, आई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5, लास्ट में क्या आएगा, आई लेस देन और इक्वल टू 50, और आ जाएगा आई का वैल्यू अभी कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से। तो आई इक्वल टू आई प्लस 5, और यहाँ पे आ जाएगा printf %d/n I. Okay, so this is the one technique to do that program. Second technique is, there is one variable n is equal to 5. मैंने किया for I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ printf %d/n, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस I मैं यहाँ पे कर रहा हूँ I into n. अब ये देखो, which program is you can say that more sophisticated program, which program you will prefer, program number 1 और program number 2, कौन सा प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अभी फर्स्ट वाला अगर आप प्रेफर करते हो, कोई लोग बोल रहे कि फर्स्ट वाला भी प्रेफर करेंगे, तो फर्स्ट वाला प्रेफर करोगे तो मैंने यहाँ पे बोला कि जस्ट टेबल ऑफ 5 है ना, अभी टेबल ऑफ 7 करो मुझे। तो टेबल ऑफ 7 करने के लिए हाउ मेनी चेंजेस आई नीड टू डू इन माय फर्स्ट प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, यहाँ पे 70 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 करना पड़ेगा। इसका मतलब है 3 मॉडिफिकेशन आई हैव टू डू, 3 मॉडिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे कितने मॉडिफिकेशन आएंगे, ओनली 1 मॉडिफिकेशन, n इज इक्वल टू 7। जैसे ही n इज इक्वल टू 7 किया तो क्या हो जाएगा, I इंटू 7, सिंपल है। तो 1 to 10 तो होगा ही, मतलब क्या है, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, इस तरीके से 7 इक्वल टू 7 into 1, इस तरीके से ओनली 1 मॉडिफिकेशन। सो विच इज द मोर इफिशिएंट प्रोग्राम, 1 और 2, बोथ प्रोग्राम्स आर हैविंग द सेम आउटपुट, लेकिन मोर इफिशिएंट कौन सा है, ये मोर इफिशिएंट है। तो कंपनी में भी अगर आप कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहां पे आउटपुट डजंट मैटर्स, आउटपुट तो आने ही वाला है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, आपका लॉजिक और आपका वे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कम से कम मॉडिफिकेशन करने आना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग चाहिए, आपका रीयूजेबल प्रोग्रामिंग चाहिए। See, once you write one program, then you can modify that program easily. Got it? Okay. So instead of this, अगर मैंने इस तरीके से मैं करता हूँ, इससे अच्छा है मैं एक काम करूँ कि यही प्रोग्राम है फंक्शन से कर दो। तो जैसे मैंने एक फंक्शन कर दिया इंटीजर मल्टीप्लाई और द
simply table, integer table, and then I'm taking one output as a n, और मैंने यहाँ पे कर दिया integer I, और मैंने कर दिया for I is equal to 1, I less than or equal to 10, I plus plus, और मैं यहाँ पे कर दूंगा printf percentage d slash n I into n। जैसे मैंने I into n कर दूंगा तो n, whatever the n value you are passing to this function call, actually it is get replaced here, और output क्या आएगा, table of the given number। तो main function में आपको simply क्या करना है, in the main function what you have to do, you have to just call that table function। तो table function में table of 7 चाहिए, तो आपने सिंपल टेबल 7 कर दिया। जैसे ही टेबल 7 कर दिया तो क्या हो जाएगा, n is now become 7। जैसे ही n 7 हो गया तो आपको आउटपुट आ जाएगा 7 का टेबल। अगर n का वैल्यू अगर आप 10 देते हो तो आउटपुट आ जाएगा टेबल ऑफ 10। गॉट इट? सो does actually you have the proper knowledge of that function? Does I need to revise the function? Function revision करना है? Because function is the very basic points, very basic point for all the programming language. ओके यही एग्जांपल लेते हैं फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए। देखो सबसे पहले मैंने टेबल, अब ये फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन। नो फंक्शन इज द, यू कैन से दैट इट इज द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, इट इज द सम पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट रिटर्न आउटसाइड द मेन फंक्शन। यह आपका मेन फंक्शन है। आपने कोई स्टेटमेंट्स आपने लिख दिया, आपने उसको क्या कर दिया, अलग से लिख दिया, एंड यू हैव गिवन द नेम टू दैट फंक्शन। You have given name to that function, and whenever you want this statement to be execute, you just call it। आपको बस कॉल करना है। When you are calling, actually what happened, your program control goes to these statements, your CPU will execute all the statement whatever you have written inside the function, and after executing the whole expression, your program control is now again go back to the calling function। मतलब क्या है, momentarily you are transferring the control of your CPU to the function, and after executing this again you will go back to the main function। जब भी मुझे लगेगा, सबसे पहले मुझे 10 का टेबल लगा, अभी मुझे 15 का टेबल चाहिए प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेबल 15 कर दूंगा। तो अभी देखो फर्स्ट टाइम मैंने टेल किया तो आए, यहाँ पे आया, एग्जीक्यूट किया, फिर से वापस गया, again there is a second function call, again you can see that again it will go here, but at that time n is equal to 15, तो आउटपुट आएगा 15 का टेबल। अगर ये हो गया आपका, यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली इसे चलता ही जाएगा। जब भी आपको एक एग्जीक्यूशन, अभी इसका फायदा क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये तो मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट में यहाँ से उठाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया 2 बार, तो ये भी तो ठीक ही है। तो व्हाट इज द एक्चुअल use of this function? Okay, Omkar is saying reusability of code. Yeah, it is actually for the reusability. Once you write your program, actually you don't need to write the same code again and again. Whenever you want that code to be executed, you just need to call it। जैसे ही आपको चाहिए कॉल करो, यूज कर दो, फिर से वापस आ जाओ, कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। जैसे हमें सपोज कोई पिक्चर देखना है, तो हम क्या करते हैं, नया पिक्चर है तो हम क्या करेंगे, जैसे पिक्चर, मैंने पिक्चर कॉल किया, पिक्चर, तो पिक्चर जैसे कॉल किया तो पिक्चर हॉल घर पे थोड़ी होता है, तो मैं जाऊंगा आपका पिक्चर हॉल में, कोई भी मल्टीप्लेक्स होगा, मल्टीप्लेक्स में जाऊंगा, पिक्चर देख लिया, पिक्चर देखने के बाद में फिर से घर पे आ जाऊंगा। तो वेरी सिंपल वन, व्हाट एवर वी नीड, हर एक को एक टास्क दिया है, दैट इज, एंड हाउ मेनी फंक्शन वी कैन राइट इनटू वन प्रोग्राम, मिनी फंक्शन। ओके, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं कि 10-15 हजार, 10-15 हजार, ऐसे नहीं है, as many you can,
आपको जितने फंक्शन बना सकते हो उतना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एंड इट इज एक्चुअली बेनिफिटेड इफ यू आर डिवाइडिंग योर टास्क इनटू द सब टास्क। आपको सब टास्क में डिवाइड किया, आपको जो भी चाहिए वो आप उसको काम दे दो, वो करके देगा मुझे। इससे क्या होगा, आपका फास्ट होगा, एंड डीबगिंग इज आल्सो फास्ट। मुझे कोई भी आउटपुट आ गया, जैसे मुझे आउटपुट आया, कोई एरर आया, आउटपुट में एरर आया, तो जैसे एरर आया तो मैं देखूंगा कि ओके कौन से फंक्शन में है, ओके टेबल फंक्शन में है, तो टेबल फंक्शन में क्या हुआ, तो सेमीकोलन मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट नीड टू लुक एट द मेन फंक्शन, डायरेक्टली टेबल में गया, ओके टेबल में सेमीकोलन मिसिंग है, मैंने कर दिया। सो डिबगिंग इज अगेन वेरी इजी। ओके, तो इसीलिए आगे चल के जो भी प्रोग्रामिंग है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी प्रोग्राम अगर आप एग्जाम्पल देखे, तो इन ऑल द रिमेनिंग प्रोग्रामिंग, द फर्दर प्रोग्रामिंग, दैट फंक्शन जो है, फंक्शन कभी भी हटाया नहीं गया है। एवरी प्रोग्राम, एवरी लैंग्वेज इज हैविंग द फंक्शन इनसाइड इट। जैसे हम देखिए पाइथन का एग्जांपल, पाइथन में फंक्शन है, सी प्लस प्लस में फंक्शन है, जावा में फंक्शन है, उसके एडवांस टॉपिक्स है, जैसे क्लासेस आए, क्लास में हमने फंक्शन इंक्लूड किया, लेकिन फंक्शन का बेसिक टास्क तो वही रहा। सो गॉट इट। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अगर कोई भी आपको सिखाता है तो आपको तीन चीजें सीखना जरूरी है। सबसे पहले हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, also known as प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि इट विल टेल्स मोर अबाउट द योर फंक्शन। जैसे मैंने कर दिया वाइड डिस्प्ले, ठीक है, प्रोटोटाइप इज ऑलवेज एंड विद द सेमीकोलन। तो फंक्शन अगर मैं प्रोटोटाइप लिखता हूं तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये फंक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन डिस्प्ले, हाउ मेनी इनपुट आर्गुमेंट इज टेकिंग। इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो कितने आर्गुमेंट मुझे देने पड़ेंगे, इनपुट कितना देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका। अभी इसमें जीरो आर्गुमेंट फंक्शन है। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो आर्गुमेंट फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीजर n, सो इट इज नोन एज अ वन आर्गुमेंट फंक्शन। गॉट इट। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चला, द नेम ऑफ द फंक्शन। देन नेक्स्ट वन इज द काउंट, आर्गुमेंट काउंट, आर्गुमेंट काउंट, एंड द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, ये भी मुझे पता चला। एवरी आर्गुमेंट शुड हैव इट्स ओन डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट क्या पता चला, व्हाट द फंक्शन इज रिटर्निंग, दैट इज अ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप। मतलब क्या है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे रिटर्न क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। अब यहाँ पे इस केस में क्या मिलने वाला है, वाइड, वाइड मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मतलब ये दिस डिस्प्ले इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, डिस्प्ले कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर उसी तरीके से मैंने ऐसे कर दिया इंटीजर ऐड, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो इससे क्या पता चलता है, अभी डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, डिक्लेयर कर दिया मैंने कि ये ऐड नाम का एक फंक्शन होगा which takes the two integer arguments, पहला इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है, take the two integer argument। to execute this function we need to call the add and we need to pass the two integer argument, and this function is returning an integer, this function is returning an integer। got it। so by looking at the declaration only we can check these three things, name of the function, return type of the function, and the how many arguments are there and what is the data type of the argument। तो सिर्फ प्रोटोटाइप भी है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन आपको कैसे एग्जीक्यूशन करना है। तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी नेक्स्ट हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन। अब ये फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन जिस तरीके से मैंने किया सब इंटीजर ऐड, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, अगर इस तरीके से मैं करता हूँ तो क्या हो गया, जैसे मैंने किया, मैंने यहाँ पे करता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब ये डेफिनेशन मतलब क्या होता है, डेफिनेशन कंटेन्स द नेम ऑफ द फंक्शन, डेफिनेशन कंटेन्स द इनपुट आर्गुमेंट्स, definition contains the return, and one major thing the definition contains is the
body of the function. It contains the body of function. So by looking at the body of function, you can now say that this function is doing the addition a plus b and it returning the addition. अभी इसका जो return type है, ये जो expression आपने दिया, the return type of this function and whatever you have written here data type, it should be match. जैसे integer plus integer क्या होता है, integer, तो ये हो गया आपका integer, तो ये match होना चाहिए, it should be match. तो ये हो गया आपका function definition. Next हो गया आपका function call. अभी मैंने लिख लिया है फंक्शन डिक्लेरेशन भी लिख लिया है, फंक्शन डेफिनेशन भी लिख लिया है. अभी ये फंक्शन को यूज करना है. इफ आई वांट टू यूज दिस फंक्शन देन आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन. कॉलिंग करना मतलब क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना. कॉल करना मतलब उसको करना है एग्जीक्यूट करना. फंक्शन क्या है, सपोज जैसे फंक्शन ऐड फंक्शन कॉल करना है मुझे, मैंने इनपुट दे दिया सपोज 5 और 10, तो ये हो गया. नाउ दिस 5 इज पास टू ए एंड 10 इज पास टू बी. ए का वैल्यू हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन में, ए का वैल्यू हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू हो जाएगा 10. ओके, so these are known as the actual arguments. 5 and 10, these are the actual argument, and a and b, these are known as the formal arguments. तो ये हो गया, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट में एक्चुअल आर्गुमेंट स्टोर हो गया. तो 5 में ए में 5 स्टोर हो गया, बी में 10 स्टोर हो गया. And using this a and b, now add is doing the addition of these two variables a plus b 5 10 और 5. अभी एडिशन तो कर लिया मैंने, रिटर्न भी हो जाएगा, लेकिन रिटर्न करने के बाद में वी हैव टू कलेक्ट द वैल्यू. मतलब ये जो ऐड है ना, ऐड फंक्शन कुछ तो वैल्यू रिटर्न देने वाला है. जो भी रिटर्न देने वाला है मुझे वो स्टोर करना है. आई नीड टू स्टोर समवेयर, सो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया सी में. तो मेन फंक्शन में, इन द मेन फंक्शन I'm calling this function, and in the C variable I am storing the result of this function. Result of this function, ये कोई भी कुछ भी जो देगा ना, जो कुछ भी वैल्यू दे, that value get stored inside the C. अभी ये C में मुझे वैल्यू मिल गया. अभी C वैल्यू मिलने के बाद में if I want to display the C, then I can display it. रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए %d, c. So in this way my program get completed. So got it? So these three techniques you have to revise: function definition, function declaration, and the function call. Got it? Don't you see it's a very amazing task? If there is no function actually, then you can't write even a single program in C language, because your program start with the main function. Your program start with main function. So what is main? Main is the function which is not taking any type of the argument and which is not returning anything. There is again one more form of the main function. Main function, this is another form of the main function. Main function is not taking any argument and returning an integer. If you are writing this, then you have to return 0 after the execution of your program. Got it? Then there is again one more form of the your main function. How many of you know this one? कितने लोगों को पता है ये? Integer main, int argc, क्या int star argv, char star argv. This main form of the main function we can use when we want to use the command line argument. And if you want to use command line argument, then we can actually use this type of the main function. Generally हम लिखते int main या void main. Okay, so void main is also possible, int main is also possible. Java में अलग है Hamid. Java is having the different main function: public, static, void, main, and char. Then your string, वहाँ पे string input होता है.
ये सी लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ. इट इज रिगार्डिंग टू द सी लैंग्वेज. सी एंड सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस में भी सेम ही है. Okay. Okay, now we'll move towards our okay, for again covering the pointer, we need to again revise one more thing, that is the array. So just quickly tell me, what do you mean by array? What do you mean by array? What is the array? What is the meaning of the array? Collection of similar type of element. Yeah. Yeah, collection of. I require the exact definition. Collect the, yeah, set of the collection. Okay, yes, collection array element, collection of similar data type. Okay, 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 yes, 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 yes. Okay, this is the half definition. You are telling me half definition. Only half definition you are telling. Collection of similar data type. Okay, from location. Okay, from location 0. Okay. Single variable. Okay. Okay, okay, okay. Access using the common name. Yes, you can access using common name. Okay, so we'll see what is definition. But we were starting this definition. Just let me show you the array. The array in the memory. The array is stored in the memory in terms of this one. So this is the array. How many? What is the size of this array now? Size means how many elements present in the array. There are 5 elements in the array. The name given to this array is suppose ARR. The name given to the array is the ARR. Now to access the first element in the array, we have its index. Index number 0. So array element start with this element 0. Index 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. So these are the indexes. So how to declare this array? If I want to declare, so if it is a type of the integer, so you are say that array is a collection of similar data item. Collection of similar data item, it means that all the data items are having the same data type. हर एक का डेटा टाइप सेम ही होगा. ये इसका भी डेटा टाइप जो है वही डेटा टाइप इसका होगा. तो हर एक का डेटा टाइप मैंने इंटीजर ले लिया, नाम दे दिया मैंने ARR. ओके. नाम के बाद में आपको देना होता है डिक्लेरेशन में. इन द डिक्लेरेशन यू हैव टू गिव दी व्हाट इज द साइज ऑफ एरे. मतलब उसमें कितने इंटीजर है. 0.5 इंटीजर है, मैंने 5 इंटीजर दे दिया. सो दिस इज नोन एज अ डिक्लेरेशन. उसको बोलते हैं हम एरे डिक्लेरेशन. मैंने एरे डिक्लेरेशन दे दिया. तो जैसे आप डिक्लेयर करते हो तो क्या करता है, जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, मेमोरी में आपका एक ऐसे ब्लॉक क्रिएट होगा. लेकिन वो ब्लॉक का साइज कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंटीजर. अभी कितने इंटीजर से यहाँ पे 5 इंटीजर से. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ वन इंटीजर इन अ लिनक्स एक्चुअली, or in a 32-bit environment, the size of the size of the integer is the 4 byte. But if you are using turbo C, the size of the integer is 2 bytes. तो we are talking about Linux. तो मैं Linux के बारे में बात करता हूँ क्योंकि most of now compilers are using the GCC compiler. वहाँ पे integer का size 4 byte होता है. तो if my starting memory is 100, if my starting memory is 100, तो ये जो होगा ना, ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ये कितने बाइट का होगा, ये होगा आपका 4 बाइट का. सेकंड वाला कितने बाइट का होगा, ये भी हो गया आपका 4 बाइट का. थर्ड वाला ये भी हो गया आपका 4 बाइट का. ये भी हो गया 4 बाइट का. ये भी हो गया 4 बाइट का. तो टोटल साइज कितना हो गया, द टोटल साइज बिकम्स द 5 multiplied by the 4, that is equal to 20 bytes. So 20 bytes is the size. अगर starting address 100 है, if the starting address is the 100,
can you tell me what is the address of the next element in your array? इसका क्या होगा? इसका 101 होगा या 104 होगा? कौन सा होगा? 101 अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब है ये एक ही बाइट का है, लेकिन हमें अभी देखा मैंने ये 4 बाइट का है। तो 4 बाइट का मतलब क्या है? देयर आर टोटल 4 लोकेशंस आर देयर, 1 2 3 4 4 लोकेशन। तो 100 101 102 103 और ये हो गया आपका 104। तो इसी तरीके से नेक्स्ट होगा 108, ये हो गया 112, ये हो गया 116। तो हर एक का स्टार्टिंग एड्रेस भी मुझे पता चल गया। ओके, लेकिन ये 100 के बाद में 104 ही है, 104 के बाद में 108, 108 के बाद में 112, 112 के बाद में 116 ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसे नहीं है कि 100 के बाद में 200, 200 के बाद में 300, ऐसे नहीं है। ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव। तो एरे का डेफिनेशन आप बना सकते हो, अभी बना सकते हो आप डेफिनेशन। Array is a collection of the similar data item stored in consecutive memory location. This is the whole definition of the array. Array is the collection of similar data item stored in a consecutive memory location, continuous memory location. This is the now the definition of the array. Okay, तो कभी भी आपको कोई array पूछे ना definition, तो ये सिर्फ similar data item नहीं बोलना है, क्या करना है? continuous memory location is also important. अगर continuous नहीं है तो we can't access it with the help of this indexes. continuous है इसीलिए तो index से access कर सकते हो। अभी index से कैसे access करते हैं ये pointer देखने के बाद में हमें करना पड़ेगा। Got it? तो समझ में आ रहे? How to access the third? सपोज ये third variable है, मुझे access करना है, मुझे इसमें 5 स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करूंगा? तो मुझे करना पड़ेगा I want to use the array. एरे नेम के बाद मुझे ये एक्सेस करना है, ये एक्सेस करना है। तो ये एक्सेस कैसे करूंगा? उसका इंडेक्स है, तो इंडेक्स यूज करूंगा 2, और उसमें क्या स्टोर करना है? 5 स्टोर करना है। तो एरर ऑफ 2 इक्वल टू 5। तो हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा? इट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या करता है? 5 गेट स्टोर इनटू एरर ऑफ 2। द एड्रेस में आपका स्टोर हो जाएगा ये 5108 एड्रेस के ऊपर 5 स्टोर हो जाएगा। गॉट इट? ये 5 स्टोर हो जाएगा एयर ऑफ 2। अगर आपको 3 में मैं करता हूँ 15, तो क्या हो जाएगा? ये 15 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। Got it? So in this way we can access the array element by using its indexes. Got it? If you are getting, if you are thinking that it is a very simple, then just type simple. Just type simple if you are saying that this is a very simple, sir. Yes, it is a very simple techniques actually. Now next one is we started talking with the addresses, so we'll start with the pointer. We start with pointer. So what is pointer? Pointer is a variable, very simple. Pointer is a variable. ये भी variable ही है, but it is a special type of variable. Okay, it is a special type of variable. Now how it is special? Special मतलब क्या होता है? वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं? वी आर स्टोरिंग द डेटा इनसाइड वेरिएबल। जैसे मैंने किया इंटीजर a इज इक्वल टू, तो इसमें स्टोर किया 10, 10 इज द सिंपल डेटा। लेकिन स्पेशल क्या है? अगर ये पॉइंटर, अगर पॉइंटर का नाम p है, सो व्हाट आई कैन स्टोर इनसाइड द p? आई कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। आई कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। So if there is a variable in which I can store the address, you can say that that variable is a type of the pointer variable. Okay, ये different definition. ये simple definition अगर आप बोले तो pointer is the variable. Yeah, I'm writing here. Pointer is a special type of variable which can store address of another variable. Now that variable can be itself a address, itself a pointer itself. Okay, ऐसे नहीं है कि जो
एड्रेस स्टोर करेंगे वो दूसरा वेरिएबल, ऐसे नहीं कि वो सिंपल वेरिएबल ही होना चाहिए, वो पॉइंटर का भी एड्रेस में स्टोर कर सकते हो, इट इज नोन एज अ डबल पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एकदम सिंपल है, कोई डेफिनेशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ क्या होता है, जिनको नहीं आता पॉइंटर वो आपको बोलते हैं इट इज अ डिफिकल्ट, लेकिन पॉइंटर इतना इजी है। देखो सपोज ये एक वेरिएबल है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, का लाइट गेले, की आता सगळ्यांना दिसतंय? ऍक्च्युली आमच्या लाईट गेली आहे, त्यामुळे आता मी मोबाईल वरून लावलेलं आहे, म्हणून थोडा तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल. Okay, now integer a is equal to 10. This is the very simple variable. Whenever you are creating this variable, actually what happened, there is one memory get created. The memory get created for the 4 bytes. The value of this a is 10, and suppose the address is 2000. The address of this a is 2000. Now you want to create one pointer variable. How to create a pointer variable? To create a pointer variable, first you have to define the data type of your pointer. The data type of the pointer is, suppose I want to store the address of integer. I want to store address of integer. So the data type of the pointer should be integer. And how it become pointer? By using this star. So int star. Int star become, it is an integer pointer. And int star p. Int star p. So what happened if you are doing this int star p? So it is p. A simple variable is created. Now what is the content of p? There is no content. Now you are going to store the address of a into the p. Address of a into p. So address of a you are storing into the p. So what is the address of, you are not storing content, you are storing address. So p contains 2000. P contains 2000. Got it? So it means that you are storing the address of this a inside p. If I have the address, I can access a. ये देखो, अगर मेरे पास एड्रेस है ना किसी का भी, तो मैं उसके घर जा सकता हूँ। यहाँ पे भी पी के पास अगर एड्रेस है ना, तो ए को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एड्रेस एक्सेस कैसे होता है, हाउ टू एक्सेस इट? तो यहाँ पे सिंपल मैं कोड लिखता हूँ, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने कह दिया int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। नो, आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। अगर मुझे ए प्रिंट करना है तो आई कैन प्रिंट इट बाय यूजिंग ए ओनली। लेकिन वही अगर मुझे a एक्सेस करना है यूजिंग p, तो कैसे करेंगे? because there is a asterisk operator or known as a value at operator. क्या करते हैं, बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। तो वैल्यू एट ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ p नहीं लिखूंगा। अगर मैं p लिखता हूँ, इसका मतलब है कि p का कंटेंट प्रिंट कर रहा हूँ। p का कंटेंट कितना है? 2000। मुझे 2000 नहीं प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है 2000 का कंटेंट। मतलब क्या है, आई नीड टू डी रेफरेंस इट। तो मैंने ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया, तो ये हो गया वैल्यू एट पी। पी है 2000, तो वैल्यू एट 2000, वैल्यू एट 2000 कितना है? 10। तो 10 गेट प्रिंटेड हियर। So to access the content of the address stored inside that pointer, we are using this operator. This is known as a value at operator, also known as a dereference operator. Dereference operator. So got it? Dereference operator. Okay. So there is one question.
What is the, tell me the size of, what is the size of integer pointer, character pointer, float pointer, and the double pointer? Just think and just tell me what is the size of this one. Okay, float 4, integer 2, 2 bytes, 2 bytes, integer, size of integer, integer 2 bytes. Yeah, just take it, size of integer is 4 byte. The size of integer is 4 byte, size of character is 1 byte, size of float is 4 byte, and size of double is 8 byte. Okay, I'm talking about the data type, integer, character, float, and double. Now I want to I need to tell me what is the size of pointers here. Integer pointer, character pointer, double pointer, and all 2 bytes. Komal, 2 bytes, all 2 bytes. Okay, most of the students are saying that it is 2 byte, then it is 1 byte, it is 4 byte, and it is 8 byte. 16 byte nahi rehna. Okay, depending on the address. Who? Neha Devre. Okay, Neha Devre, your answer is correct. Depending on the address size. So what is the pointer? Just tell me, just revise the definition. The pointer is the variable which store the address inside it. उसमें क्या होता है? Address. अभी address क्या होता है? Address is the entity, that is the, it is a number given to this memory location. मेमोरी लोकेशन को कुछ नंबर दिया होता है, स्टार्ट विद 00000 और एंड विद द ऑल 1111 और FFFFFF. मतलब एड्रेस का साइज कितना है इसके ऊपर डिपेंड होगा आपका पॉइंटर का साइज कितना है. अभी ऐसे तो नहीं हो सकता कि इंटीजर का एड्रेस का साइज 4 बाइट है, कैरेक्टर का एड्रेस का साइज सिर्फ 1 बाइट है, फ्लोट का एड्रेस का साइज 4 बाइट है और डबल का एड्रेस का साइज 8 बाइट है. ये 8 बाइट 4 बाइट 1 बाइट क्या है? इट इज द साइज ऑफ द डेटा. डेटा का साइज है. लेकिन एड्रेस क्या होता है? एड्रेस मतलब क्या होता है? इट इज अ मेमोरी लोकेशन. दिस द मेमोरी लोकेशन. इंटीजर है तो ये 4 बाइट ले लेगा, लेकिन इसका एड्रेस किस में स्टोर होगा? वो 000. इफ स्टार्टेड विद द 0, ऑल 0. कितने जीरोस है? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? हाउ मेनी वंस आर देयर? हाउ मेनी वंस आर देयर? हाउ मेनी 0 वंस आर देयर? that will decide the size of 0. और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कितने 0 कितने 1 है? it decide by your size of your address bus. अगर आपको बेसिक्स, अगर MSCIT किया है तो आपको ये पता होगा एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है. डेटा बस कैरीज द डेटा, एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस. तो एड्रेस बस का साइज कितना है? if the size of the address bus is 32 bit, it means that the every हर एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 32 बिट का एड्रेस मुझे जरूरी होता है. तो एड्रेस, तो ये इंटीजर का भी साइज होगा 32 बिट का ही एड्रेस होगा. कैरेक्टर अगर कोई वेरिएबल है उसका भी साइज 32 बिट ही होगा. फ्लोट का भी 32 बिट ही होगा. डबल का भी 32 बिट होगा. इन टर्म्स ऑफ योर एड्रेस बस इज 32 बिट. तो कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वेरिएबल रहे, वो इंटीजर रहे, फ्लोट रहे, डबल रहे, कोई भी रहे, एड्रेस तो एक ही होगा. एड्रेस का साइज तो कभी चेंज नहीं होगा. सो इट इज ऑलवेज 4 बाइट्स in terms of your 32-bit environment, and if it is 16-bit environment, the size of your pointer is always 2 bytes.
तो रिमेंबर दैट, ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछते ही आपको इंटरव्यू में, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर. सो योर आंसर शुड बी, सर द साइज ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज फिक्स, इट्स डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस बस. If your address bus is 32 bit, then the size is the 4 byte. If your address bus is 16 bit, your size is the 2 byte here. So got it? Got it? So remember here, if anyone is asking this, then always say this answer. The size is not depending on the data type. The size is depending on, depends on the your address bus size. ओके, जसं टर्बो सी वापरताय, टर्बो सी मध्ये किती असतं, टर्बो सी 16 बिट कंपायलर आहे. टर्बो सी मध्ये किती असेल ऍड्रेसची साईज. आता जर तुम्हाला चेक करायचं असेल, तुमच्याकडे टर्बो सी कोणाकोणाकडे असेल, तर त्यांना जर ज्यांनी चेक करायचं असेल तर त्यांनी काय करायचं, हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघायचा. मी तुम्हाला प्रोग्राम देतोय, दिस प्रोग्राम यू आर टू एक्झिक्यूट. printf %lu and the size of int star, then printf %lu size of char star, same for float star and same for double star. ओके, क्या करना है आपको, ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है. जब अगर एग्जीक्यूट करोगे ना, तो अगर आप टर्बो सी में एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट आएगा 2222. अगर यही आप लिनक्स में या जीसीसी में कोई भी किस में करते हो तो आउटपुट आएगा 4444, बिकॉज इट इज यू आर प्रिंटिंग द साइज ऑफ द पॉइंटर. आप पॉइंटर का साइज कर रहे हो. गॉट इट? Okay, so one more point I need to discuss again. Suppose this is my array. The name is ARR 0 1 2 3 4. The size is 100 and the location is 100 104 110 112 and 116. Okay, it is an integer type. Suppose I'm assigning some values. Suppose 5 10 20 25 30, some values I am assigning. So my program is integer ARR 5 is equal to 5 10 20 25 and 30. So in this way we can initialize the array. Now next one is I'm creating one pointer in star p is equal to address of ARR of 1. ओके, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया p which contains address of ARR1. एड्रेस ऑफ ARR1 कितना है 104, तो ये हो गया आपका 104. So it means that the p is pointing to this. तो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ printf %d और यहाँ पे मैंने किया value at p. So what should be the output? What should be the output? Okay, the output is 10. Yes, correct. The output is 10. Now tell me, if I'm doing p plus plus, if I'm doing p plus plus and I'm doing this again %d and value at p. Now tell me output. I'm doing p plus plus and I'm taking the value here. The output is error. There is no error. 20, 10 or 11, Aishwarya, or 20 only. Value of star p will be 10.
star p, but you are doing p plus plus. So what will we do? So what happen, you are incrementing the pointer. अभी एकदम सिंपल है, देखो प्लस प्लस ऑपरेटर हमने सीखा है. प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1. तो p प्लस प्लस किया है, तो p का वैल्यू जो भी होगा वो इंक्रीमेंट होगा. कितना होगा? 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा. तो मतलब क्या होना चाहिए? 104 इंक्रीज, 104 गेट इंक्रीमेंटेड. p का कंटेंट है 104, इट शुड बी इंक्रीमेंट. अभी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कितने से इंक्रीमेंट होगा? इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 और इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 4. Khushwan, y code says 4. Why 4? Why 4? Because there is a reason. आपको कोई भी आंसर होगा ना, उसका रीजन होना चाहिए. Now here the correct answer is, if you are incrementing the pointer, in this case your answer is 108. तो 104 का इंक्रीमेंट किया तो आ गया 108. लेकिन हमने तो पता है हमें p प्लस प्लस क्या करता है? 104 प्लस 1. तो 104 प्लस 1 तो 105 होता है. तो 108 कैसे आया? 108 तो आना नहीं चाहिए था, तभी भी आया. करेक्ट आंसर तो यही है. 104 प्लस 1 क्यों हुआ? तो इसलिए होता है कि पॉइंटर इज द pointer, this pointer p is the pointer to integer. If you are incrementing the pointer, it means that you start incrementing by to the next integer. आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो एक नेक्स्ट ब्लॉक में इंक्रीमेंट करो. दिस डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर डिफाइंस द ब्लॉक साइज. ये p पॉइंट कर रहा है एड्रेस को, 104 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उस ब्लॉक का साइज कितना है, वो ब्लॉक का साइज कितना है डिफाइन करता है इंटीजर. ओके, तो p का ब्लॉक से ये ब्लॉक p जो है ना, ये ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था. ये एक सिंपल बाइट को नहीं पॉइंट कर रहा था, ये ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था. इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग p, it means that you are now incrementing the block. You are incrementing the block. तो अगर 104, अगर ये 4 बाइट का ब्लॉक है तो नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा आपका 108. तो always remember that if you are incrementing the pointer, it is incremented by its size of its data type. It is incremented by the size of its data type. Pointer is incremented by size of its data type. If there is an integer pointer, it is incremented by 4 byte. If it is character pointer, it is incremented by 1 byte. If it is a float pointer, it is incremented by 8 byte, and for double pointer, it is incremented by 16 byte. So always remember that ये सिंपल बाइट को नहीं पॉइंट कर रहा है, ये ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है. अगर ये 10 को पॉइंट कर रहा है, इफ यू आर डूइंग p प्लस प्लस, अभी ये इसको हटा देगा, इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा. इफ यू आर डूइंग अगेन p प्लस प्लस, इट स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक. अगर एक मैन्युअली आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? p प्लस प्लस है तो पहले एड्रेस था 104. तो ये डेफिनेशन ऐड करना है, पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय साइज ऑफ इट डेटा टाइप. तो p का डेटा टाइप क्या है? p का डेटा टाइप है इंटीजर का साइज कितना है? 4 बाइट. तो ये इसको +4 करना होगा आपको. तो 104 + 4 that is equal to 108. Got it? So always remember that if you are incrementing the pointer, it is incremented by its size of its data type. So got it? And what about the decrement of the pointer? If p is equal to 108, and if you are doing minus p, and if it is an integer pointer, what is the size, what is the content of p? Tell me content of p. I don't want star p, I want content of p. If p contains 108, and if you are doing minus p,
The correct answer is 104 because it is also decremented by its size of its data type. ये p का वैल्यू 108 था, उसको डिक्रीमेंट किया तो इट इज डिक्रीमेंटेड बाय इट्स साइज ऑफ इट्स डेटा टाइप. तो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. इसका साइज कितना है? 4 बाइट. तो डिक्रीमेंट होगा साइज ऑफ इट्स डेटा टाइप 4. 104. गॉट इट? तो सेम तरीके से आप कर सकते हो. उस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो. सपोज 100, 104, 108, 112, it is A. If there is a pointer P, int star P is equal to address of A of 0, and now you are doing printf %d value at P plus 1. Now if you are doing, suppose यहाँ पे आंसर 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से है. तो अगर मैं सिंपल वैल्यू एट पी करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले बोलो, वैल्यू एट पी करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? 5, नॉट 10. इट इज द आंसर इज 5. वैल्यू एट पी अगर आप करते हो ना तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? 5 ओनली. लेकिन वही अगर मैंने p plus 1 किया तो क्या हो जाएगा? नाउ हियर आई एम नॉट इंक्रीमेंटिंग p को मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ब्रैकेट में डाल दिया उसको. मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट में डाल दिया, p plus 1 कर दिया और उसका वैल्यू. अभी एकदम सिंपल तरीके से अगर आप लोगे तो यू विल गेट अ आंसर. आगे p का कंटेंट क्या है बोलो? p का कंटेंट है 100. तो वैल्यू एट p हो गया आपका 5. ओके, हो गया. अभी आपको p plus 1 करना है. तो p plus 1 सबसे पहले ब्रैकेट में दिया है, तो ब्रैकेट में आपको करना है 100 plus 1. 100 plus 1. अभी ये p एड्रेस है. p इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग p तो कैसे इंक्रीमेंट होता है? इट्स साइज ऑफ इट्स डेटा टाइप. तो 100 plus 1 कितना हो जाएगा? 104. 104 हो गया. तो 104 का वैल्यू एट 104 कितना है? वैल्यू एट 104 10. सो यू विल गेट आंसर एज 10. गॉट इट? वही अगर मैंने p का कंटेंट कितना है 100, वही मैंने किया p plus 2, तो आंसर कितना आएगा? p plus 2 में आंसर कितना आएगा? 15. या करेक्ट. if p plus 3 करता हूं तो आंसर कितना आएगा? 20. यस, करेक्ट. सो देखो आप, तो मैंने विदाउट इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर ऑल्सो, मेरा p का कंटेंट तो 100 ही है. विदाउट इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर आई कैन ऑल्सो एक्सेस द डिफरेंट वैल्यूज बाय एडिंग सम इंटीजर इनसाइड इट. लेकिन ये इंटीजर ऐड कर रहा हूँ लेकिन p में स्टोर नहीं कर रहा हूँ. वैल्यू एट p plus 3, वैल्यू एट p plus 1. बट इट p एज इट इज वही है, सिर्फ ये टेम्पररी एड्रेस आपका फॉर्म हो रहा है. टेम्पररी एड्रेस गेट फॉर्म हियर. गॉट इट? ओके. सो इज इट सेम एज हियर? इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं वही करता हूं printf %d value at a plus 3. now what is the answer? now what is a? what is a? A is the array name. A is the array name, and array name itself contains the at starting address of your array. कितने लोगों को पता है? A is the array name and A contains the starting address of your array. A contains starting address of your array. So A is 100. A is equal to 100. अगर आप A print करोगे simple A तो you will get 100. तो ये हो गया आपका 100. 100 plus 3. 100 plus 3 कितना हो जाएगा? 100 plus 3 तो 4 के 3 ब्लॉक, मतलब कितना हो जाएगा? 112. तो वैल्यू एट 112, वैल्यू एट 112 कितना प्रिंट हो जाएगा? 20. यू विल गेट आउटपुट एज 20. गॉट इट? तो सेम थिंग आई कैन प्रोड्यूस बाय राइटिंग हियर a of 3. अगर a of 3 करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? इफ आई एम राइटिंग a of 3 द आउटपुट इज
द आउटपुट इज 20. यस करेक्ट. तो अब दोनों को कंपेयर करो. यू आर कंपेयर a of 3 and value at a plus 3. So can I conclude that a of 3 is nothing but it is very similar like value at a plus 3. A of 3 is very similar like value at a plus 3. बोल सकता हूं मैं? यस ओके. अगर मैं ये बोल सकता हूं, एडिशन पता है आपको? एडिशन में मैं ऐसे कर सकता हूं 3 plus a कर सकता हूं. या आई कैन डू दिस. value at 3 plus a, value at 3 plus a. Now compare it. Value at 3 plus a with this. अगर मैं a of 3 लिखना है, a of 3 मैं लिख सकता हूँ value at a plus 3. तो value at 3 plus a, can I write this like 3 of a? Can I write 3 of a? Yes, you can write. क्योंकि ये तो सिंपल है. a of 3 अगर आप लिखते हो ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, a of 3 is replaced by this value at a plus 3. So 3 of a will be replaced by this value at 3 plus a, and value at 3 plus a is nothing but value at a plus 3. Value at a plus 3 is nothing but a of 3. So I can conclude that a of 3 is very similar like 3 of a. ये प्रूव कर सकता हूं मैं. I can prove this. How I can prove this? अगर प्रूव करना है तो एकदम सिंपल है. प्रोग्राम लिखो. एक सिंपल एरे इंटीजर, वो 3 मैंने ले लिया, तो 5, 10 और 15 ले लिया मैंने. तो मुझे सपोज एक इंटीजर आई ले लिया मैंने, आई, या सिंपली एक आई लेने से अच्छा है मैं एक सिंपल करके देखो परसेंटेज डी. अगर मैं ए ऑफ 2 प्रिंट करता हूं, ई ऑफ 2, एंड अगेन आई एम प्रिंटिंग 2 ऑफ ए, द आउटपुट शुड बी सेम. दोनों का आउटपुट सेम ही होना चाहिए. ए ऑफ 2 या 2 ऑफ ए करूं, दोनों का आउटपुट सेम ही होना चाहिए. यस, इट शुड बी 15 15. ट्राई करते हैं. ओके, वी विल ट्राई हियर. अगर मैं सही बोलता हूं ना, तो आउटपुट भी आना ही चाहिए. इज इक्वल टू 5, 10, 15. Okay, and here %d /n और यहाँ पे आएगा आपका e of 2. वही अगर मैं printf करता हूँ %d /n, 2 of a, दोनों का आउटपुट क्या आना चाहिए? दोनों का आउटपुट होना चाहिए आपका सेम ही आना चाहिए. मतलब क्या है, 15 फर्स्ट लाइन के ऊपर, 15 सेकंड लाइन के ऊपर. सो विल ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम and you will get output. Okay, so that program need to be typed again. Integer e of 3 is equal to 5, 10, 15, and then printf %d, a of 2, and 2 of a. Okay, you can see here the same program I have typed again.
Next, I'm running this program. That is online compiler, so that's why it takes time. But you can try it yourself, huh? You can try it yourself. That is actually that compiler is not responding, but you can try yourself. And while coming tomorrow, actually, you should have to be run this program at your computer, or even you can use the C compiler on your turbo your smartphone also, and just install the smartphone, and you can check this output. The output, I am damn sure that the output is 1515. Okay, so if you get the another type of the output, then I will give you 1000 rupees price. If the same program, if you are executing, and if there is a output, the different output than 15 and 15, there is a 1000 rupee prize. Okay, but I definitely 100% or 1000% sure that the output is only 1515. Got it? So remember that this is not an error. E of 2 and 2 of a, this is not an error. But don't who know this particular thing, they always think that sir there is a error, E of 2. No sir, 2 of a nahi chahiye, E of 2 chahiye. There is a error. Got it? So actually we will end here. It is already 11:53. 2 hours is completed. Exact 2 hours is completed today. Okay. So there is one. Okay. Voice is break. Okay, I am taking Q&A question. Okay. So Ansari, Mohammad Nadir Ansari, आपने क्वेश्चन डाला है कि आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है, आंसर नहीं दे रहा, तो नयन मैडम को कॉल करना है आपको, नयन मैडम को. When we will get the link of the yeah, Guruvarya, actually what is the problem with the Guruvarya, we are updating the different courses again. सबसे पहले तो वहाँ पे आपको जब डेमो दिया था वहाँ पे only 6 courses are there, but currently the more courses are being updated, and after updating the whole courses and that test of all the quizzes, you will get that Guruvarya recently. आज है कि आज अगर होता है तो आज ही मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम आपको कल तक आपको गुरुवार का मिलेगा. But meanwhile you can study from your YouTube story resources. Is the electrical engineering? Yes, yes. Actually, electrical engineering students, there are the sessions like electrical vehicle, solar. Yeah, there are the experts we have invited. जैसे आपको मोस्ट ऑफ आपको फ्राइडे सैटरडे ये सेशंस हो गए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर के रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी क्लासेस है आफ्टर द पाइथन इज एक्चुअली नीडेड फॉर ऑल द ब्रांचेस. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द common session for that Python. Okay. How to create the logic of the program. How to create, actually logic is depending on your aptitude. सपोज अगर आपके पास यहाँ पे लतीश चौधरी है, लतीश चौधरी क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. ये देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर डिपेंड है. ओके, देयर आर द मल्टिपल वेज इन विच वी कॅन सॉल्व द प्रोग्राम. तुम्हाला जर प्रोग्राम दिलाय ना, एखादा प्रॉब्लेम दिलाय, तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे सॉल्व करू शकता. म्हणजे असं नाही की मी माझं लॉजिक सांगतोय तेच लॉजिक तुम्ही इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. तुम्ही तुमचं लॉजिक स्वतःचं लॉजिक तुम्ही बनवू शकता. तुम्ही स्वतःचं लॉजिक बनवल्यानंतर ते लॉजिक असं असू शकतं की माझ्या लॉजिक पेक्षाही चांगलं लॉजिक असू शकतं.
ओके. म्हणून एक आहे की तुम्ही स्वतःच अगोदर क्रिएट करा. तुम्हाला फ्लो लक्षात घ्या. जर तुम्हाला अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट हे तुम्हाला माहिती असेल, तर ते तुम्ही अगोदर शिका ते. आणि एक पर्टिक्युलर एखादं काही काम करायचं झालं, तर आपण जनरली काय करतो, की एक स्टार्ट कशाने करायची आहे? ही स्टेप झाल्यानंतर दुसरी स्टेप कशी करायची? तिसरी स्टेप कशी करायची? हे आपण स्टेप वाईज आपण अगोदर ब्रेकआउट करतो. सेम प्रोग्रामिंगमध्ये आहे. सो मला जर काहीतरी करायचं आहे, मला एखादा नंबर इव्हन आहे की ऑड आहे, तो मला फाइंड आउट करायचा आहे. मग जर तसं करायचं झालं, सगळ्यात अगोदर मला स्टेप 1 घ्यायला लागेल. युजरकडून नंबर घ्या, तो स्टोअर करा व्हेरिएबलमध्ये. नंतर त्यात चेक करा की तो डिव्हिजिबल बाय 2 आहे की नाही. डिव्हिजिबल बाय 2 असला तर तो प्रिंट करा, इव्हन नसला तर तो ऑड. दीज आर द स्टेप्स. याचं लॉजिक क्रिएट होतं आणि ते छोट्या-छोट्या प्रोग्राम स्टार्ट करा आणि छोटा प्रोग्राम स्टार्ट झाल्यानंतर तुम्ही मोठ्या प्रोग्रामपर्यंत नक्की जाऊ शकता. आणि डिफिकल्ट नाही आहे. युअर प्रोग्रामिंग इज व्हेरी व्हेरी इझी. फक्त तुम्ही काय, तुम्ही स्वतः तुम्ही त्यांना डिफिकल्ट करतात, दुसऱ्यांशी को रिलेट करतात. जसं आहे तसं तुम्ही अगोदर एक्सप्लेन तुम्ही स्वतः घ्या. मोस्ट ऑफ जर तुम्हाला प्रोग्राममध्ये एक्सपर्ट व्हायचं असेल, तर बुक्स इज द व्हेरी बेस्ट रिसोर्स. बुक इज द व्हेरी बेस्ट रिसोर्स. मी तुम्हाला सांगतो की एखाद्याने शिकवणं आणि बुक मधून वाचणं, बुक मधून तुम्हाला 100% नॉलेज. आज मी जे सी लँग्वेज मध्ये शिकला, तुम्ही आज शिकले ते, मी ज्या वेळेला सी लँग्वेज शिकवतो मुलांना, त्या वेळेला ते कमीत कमी 3 महिन्यामध्ये होतं. आज ते 2 तासामध्ये आपण कव्हर केलंय. म्हणून असं नाही की ते लगेच तुम्हाला समजेल, पण तुम्हाला ते स्वतःशी रिलेट करावं लागेल. तुम्हाला त्याचे बुक्स वाचावे लागतील. त्यानंतरच तुम्ही त्यामध्ये एक्सपर्ट होऊ शकाल. ओके. ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम कल एक नए लॉजिक या नए प्रोग्राम से, नए सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। हम कल स्टार्ट करने पाइथन से। Python, can you start Python from tomorrow itself? Yes, 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 yes. And the recording of this session is also available. Those who join late, आज बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो पूरा जो आपका जितना भी टाइम आपका गया है, वो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखना है, बिकॉज दिस सेशन आई थिंक माइट यूजफुल टू यू. ओके, ज्यांना टायमिंगचा प्रॉब्लेम असेल आफ्टरनून मध्ये, त्यांना असं एक मी सजेस्ट करेल की त्यांनी जॉईन करायचं आणि त्यांनी थोडं अर्धा पाऊण तास ऐकायचं असेल. नाही तर मग याची रेकॉर्डिंग तर आपल्याला सगळं पूर्ण अवेलेबल असणारच आहे. सेशन झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही त्याची रेकॉर्डिंग सुद्धा बघू शकतात. की पायथॉन साठी तुम्हाला एक काम करायचं आहे. python.org या वेबसाईट वरती जाऊन डाउनलोड्स मध्ये जाऊन तुम्हाला तिथे पायथॉनची EXE फाईल डाउनलोड करून ती इन्स्टॉल करून तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ठेवायची आहे. तुमच्या लॅपटॉप, जर लॅपटॉप असेल लॅपटॉपमध्ये, किंवा तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये, किंवा इवन यू कॅन यूज युअर पायथॉन इन युअर स्मार्टफोन ऑल्सो. तर स्मार्टफोनमध्ये सुद्धा पायथॉनचे काही ऍप्लिकेशन्स येतात की त्यामध्ये तुम्ही पायथॉन डायरेक्टली एक्झिक्यूट करू शकतात. तर पायचाम तुम्ही वापरू शकतात, बट बेसिक्ससाठी मी पायचाम प्रेफर नाही करणार. आपण थोडं 3 ते 4 सेशन झाल्यानंतर पायचाम इंट्रोड्यूस करणार आहे, पण अगोदर आपण आयडल मध्येच काम करणार आहे. येस, python.org. ओके, सो बाय गाईज. आजचं सेशन आपण इथेच कम्प्लीट करूया, आणि उद्या शार्पली, उद्याचा टायमिंग मी सांगतो, एक तर 10 राहील किंवा 11 असेल, तर तो मी आज तुम्हाला डिलिव्हर होईल. आणि तुम्हाला सगळ्यांना ईमेल्स भेटतच असतील. ज्यांना ईमेल्स नाही भेटताय त्यांनी परत एकदा मला पिंग करायचं आहे. मी तुमचे ईमेल्स, तुमचे अपडेट किंवा चेक करून बघेल. तुम्ही जे गुगल फॉर्म भरलाय त्यामध्ये तुम्ही जर चुकीची ईमेल आयडी भरली असेल, तर त्यांनी सुद्धा हे करायचं. ओके, सो बाय. स्टे होम, स्टे हेल्दी.